Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of BPC 014 from block 2 of unit 2, and this is the part 4. We'll start from 2.5 and we'll cover to 2.5.1 and 2.5.2 in this part of the video. In this part of the video, we will be discussing about some social, emotional and behavioral difficulties. So let's start without wasting the time. तो 2.5 है, इसमें देख सकते हैं, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कही गई है. रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इश्यूज़, इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, कुछ मामले हैं जिसके ऊपर दिए हुए हैं. तो 2.5.1 में जो है आपको सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में दिया गया है. सोशल तो जानते ही होंगे, इमोशनल जानते ही होंगे और बिहेवियरल भी जानते ही होंगे. तीनों चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ कैसे होती है उसके ऊपर इसमें दिया हुआ है. अब पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और पैराग्राफ में देखते हैं कि आखिर दे क्या रखा है. ठीक है, तो व्हेन स्टूडेंट्स हैव लर्निंग डिफ़िकल्टीज समटाइम्स सेकेंडरी इश्यूज एमर्ज. कहते हैं जब स्टूडेंट्स में लर्निंग की कठिनाई होती है तो कभी कभी एक दूसरा मामला निकल पड़ता है या एमर्ज होता है. एमर्ज मतलब निकल पड़ना. Students can get anxious about school work or become depressed. स्टूडेंट जो है अपने स्कूल वर्क के बारे में चिंतित हो सकते हैं या वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं. Behaviors can develop that are coping strategies to deal with frustration. और इसमें ऐसे बिहेवियर्स जो है वो विकसित हो सकते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन के साथ किसी भी स्ट्रेटजीज़ को डील करने में, that are coping strategies to deal with frustration. that are coping strategies मतलब ये coping strategies होते हैं फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए. coping strategies का मतलब होता है जिस strategies का प्रयोग करके आप किसी चीज़ों को से निपट सकते हैं, किसी चीज़ों का निपटारा कर सकते हैं. While these behaviors are not seen by others as effective, they may indeed serve an important function to the student. कहते हैं एक और ये जो बिहेवियर्स है वो दूसरे को द्वारा नहीं देखी जाती है एक प्रभावशाली तरीके से. दे में इंडीड सर्व एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो दूसरी ओर ये स्टूडेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रूप में काम
कर सकती है। आगे हैं वर्क एवॉइडेंस, अवॉइड्स एम्बैरेसमेंट, इट इज़ बेटर टू नॉट to work than to do it and get a poor grade. It is better to be seen as forgetful than stupid. कहते हैं काम से बचना, एम्बैरेसमेंट से बचना, एम्बैरेसमेंट मतलब परेशानी, बेचैनी, और इट इज़ बेटर टू नॉट डू वर्क देन टू डू इट, और कहते हैं कि काम करने से बेहतर है कि काम नहीं करना, और इसके बदले क्या होता है कि ख़राब अंक हासिल करना। इट इज़ बेटर टू बी सीन एज फॉरगेटफुल दैन स्टूपिड, और स्टूपिड के तुलना में फॉरगेटफुल दिखाई देना अच्छा इन सबको मालूम पड़ता है। सेकेंड है डिनाइल ऑफ प्रॉब्लम, अगर उसको कोई समस्या होती है तो उसको मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। इफ़ आई इग्नोर द प्रॉब्लम आई फील बेटर नाउ, और इससे ये लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम को इग्नोर कर देता है तो इससे अच्छा अनुभव होता है। एक्टिंग आउट इन क्लास, क्लास के बाहर एक्ट करना। इफ़ आई एम सिली इन क्लास माई पीयर्स मे वैल्यू मी, कहते हैं कि अगर मैं क्लास में मूर्ख बनता हूँ तो मेरे जो साथी हुए वो मुझे महत्व दे सकते हैं। इफ़ आई गेट किक्ड आउट ऑफ क्लास आई वॉन्ट हैव टू रीड अलाउड, लेकिन अगर मैं क्लास से बाहर निकाल दिया जाता हूँ तो मैं ज़ोर से नहीं पढ़ पाऊँगा। इट इज़ बेटर टू बी सीन एज बैड दैन स्टूपिड, तो कहते हैं स्टूपिड की तुलना में बुरा रूप में मुझे देखा जाता है, यही अच्छा है। इसके बाद है ड्रग्स एंड अल्कोहल, दिस हेल्प मी फील बेटर एंड हैंगिंग आउट विद किड्स इन्वॉल्व विद सिमिलर एक्टिविटीज़, कहते हैं यह मुझे अच्छा महसूस करने में मदद करता है और बाहर अपने ही साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जाने में, हैंगिंग करने में, उसी एक्टिविटी को करने में। इट इज़ एटलीस्ट ए ग्रुप दैट वांट्स मी, कम से कम यही वो ग्रुप होते हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे साथ चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स आर एन एरिया वेयर ए पेरेंट कैन हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट, कहते हैं कि सोशल और इमोशनल स्किल एक ऐसा क्षेत्र होते हैं जहाँ पर में पेरेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। फॉर ऑल चिल्ड्रन but especially those with learning disabilities, social and emotional skills are the most consistent indicators of success, outweighing everything else, including academic factors. कहते हैं सभी बच्चों के लिए, खास करके उन सब के लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, सोशल और इमोशनल स्किल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्सिस्टेंट इंडिकेटर होते हैं सक्सेस का, और ये जितने भी चीज़ें होती है उनसे बढ़ के होते हैं, आउटवेइंग एवरीथिंग एल्स। इसमें एकेडमिक फैक्टर भी शामिल होते हैं। एकेडमिक challenges may lead to low self-esteem, withdrawal and behavior problems, but these things can be countered by creating a strong support system for the child and helping them learn to express themselves, deal with frustration and walk through challenges. कहते हैं कि जो एकेडमिक की जो चुनौतियां हैं ये आपको कम सम्मान दिला सकती है, ये स्कूल से या एकेडमी से बाहर रहें, विड्रॉल करें, इसको भी करा सकती है, और बिहेवियर में जो है समस्या आ सकती है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होते हैं वह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो क्रिएट की जाती है बच्चों के लिए, उनसे इनका सामना किया जा सकता है, जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या एक्सप्रेस कैसे करें उनको सीखने के लिए। डील विद फ्रस्ट्रेशन, इनके जो अंदर भड़ास होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, उनसे ये निपटते हैं, और जितने भी इनकी चुनौतियाँ होते हैं, वर्क थ्रू चैलेंजेस, उन सभी के साथ ये काम करते हैं। फोकस शुड बी ऑन देयर ग्रोथ एज ए पर्सन, कहते हैं एक पर्सन के रूप में फोकस जो है वो अपने ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, और बिल्कुल अचीवमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए कि एकेडमिक मुझे अच्छा करना है, खुद तो अच्छा कर नहीं पाए और एकेडमिक में अच्छा करने चल पड़ते हैं, which will help them learn good emotional habits and right tools for lifelong success, जो कि उन्हें क्या करेंगे, गुड इमोशनल हैबिट को सीखने में जो है मदद करेंगे, और साथ में कुछ ऐसे टूल्स को सीखने में मदद करेंगे जो उनके लंबी जीवन की सक्सेस के लिए अच्छा माना जाएगा।
चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो में आप लास्ट पार्ट में चलते हैं। यह है आपका 2.5.2 में अदर डिसऑर्डर्स दैट मेक लर्निंग डिफ़िकल्ट। कुछ और ख़राबियाँ हैं, डिसऑर्डर है जो कि सीखने जैसी चीज़ों को कठिन करा देती है। तो डिफ़िकल्टी इन स्कूल डजेंट ऑलवेज स्टेम फ्रॉम ए लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं कि स्कूल में जो कठिनाई होती है वो केवल लर्निंग डिसेबिलिटी से ही हमेशा नहीं निकलता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, इमोशनल ट्रॉमा एंड अदर कंडीशंस अफेक्टिंग कंसंट्रेशन मेक लर्निंग मोर ऑफ ए चैलेंज। कहते हैं चिंता जो होती है, जो उदासीपन होती है, स्ट्रेसफुल कुछ घटनाएं होती है, या इमोशनल कुछ त्रास होता है, या ट्रॉमा होती है, ये कुछ और शर्त होते हैं जो कि हमारे कंसंट्रेशन को प्रभावित कर रही होती है, और यह हमारी जो लर्निंग होती है इसको और ज़्यादा चुनौतीपूर्वक बना देती है। इसके बाद है ADHD, जो मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आपको बता रखा है। ADHD के बारे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। वाइल नॉट कंसिडर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, कहते हैं यहाँ पर में, कैन सर्टनली डिसरप्ट लर्निंग। कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में इसे नहीं समझा जाता है सही तरीके से, लेकिन फिर भी ये लर्निंग को जो है प्रभावित निश्चित रूप से कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद ADHD ऑफ्टन हैव प्रॉब्लम्स विद सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस्ड, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्लीटिंग होमवर्क। कहते हैं जिस बच्चों में ADHD होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं, वो अक्सर जो है उनके पास ये समस्याएं होती है। ऑफ्टन लगा हुआ है, मैंने पहले ही बता रखा है, ऑफ्टन का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ का काम होने का चांस 75% होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है सही शांत से नहीं बैठ पाते हैं। स्टिल का मतलब यहाँ शांत होगा, STILL। अपने आप को फोकस नहीं करा पाते हैं, स्टेइंग फोकस्ड। जो इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती है उस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते हैं। अपने आप को संगठित नहीं कर पाते हैं, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ तक कि अपनी होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसमें भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। इसके बाद है ऑटिज़म। डिफ़िकल्टी मास्टरिंग सर्टेन एकेडमिक स्किल्स कैन स्टेम फ्रॉम परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसको PDD कहा जाता है शॉर्ट में। तो कुछ खास एकेडमिक स्किल को हासिल करने में जो कठिनाई होती है, ये परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से निकलती है। स्टेम का मतलब निकलना या उससे जुड़ा होना, ठीक है। सच एज ऑटिज़म एंड एस्पर्जर सिंड्रोम, जैसे कि ऑटिज़म और एस्पर्जर सिंड्रोम इनका नाम दिया गया है। चिल्ड्रन विद एन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर may have trouble making friends, reading body language, communicating and making eye contact। कहते हैं जिस बच्चों में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं उन्हें जो है दोस्तों को बनाने में कठिनाई हो सकती है, दोस्त वो नहीं बना पाते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही से जो है वो रोक नहीं पाते हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, और आँख से आँख मिला के बात करने में भी समस्या होती है। तो इसके साथ ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है ये जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का आपका 2.6, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। और इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, you can share this video among your friends and acquaintances so that they can also take advantage of such videos and they can prepare for the examination as well as they can strengthen the English language to the topmost level.